کہ جو بندہ آپ کو سوشل میڈیا میں یا پرنٹ کدھر بھی اگر آپ کو اشتہار بھیجتا ہے یا فون کرتا ہے، اس سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کی ایجنسی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے۔ ہمارا کام الحمدللہ ہم نے کرونا کے دوران قطر میں تقریباً 500 سے اوپر بندہ بھیجا ہے، جب پوری آل ورلڈ دنیا بند تھی پاکستان کے لیے، اس وقت بھی ہم نے الحمدللہ اس ملک سے 500 سے اوپر بندہ ہم نے قطر میں بھیجا ہے۔ اور سوال ہے یہاں پہ، جو لوگ اسٹڈی ویزا پہ جاتے ہیں وہ بیرون ملک میں صرف اسٹڈی کر سکتے ہیں تو جاب بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ؟ دیکھیں جاب بھی کرتے ہیں وہ لوگ، تھوڑا ٹائم ملتا ہے ان کو، لیکن آج کل یو کے نے بہت سختی کر دی اور یو کے میں سروائیو کرنا اسٹوڈنٹ کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ جی الحمدللہ فائنلی میرا جو ہے ویزا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں کافی جگہ پہ میں نے ٹرائی کیا تھا اور مجھے نا وہاں پہ کسی نے کوئی ویزا نہیں دیا، جو بھی بات کرتا تھا بس وہ مجھے کھا پی کے نا چلے گئے ہیں۔ اور الحمدللہ آج مجھے الاروم سے نا مجھے جاپان کا ویزا ہے وہ مل چکا ہے، اور الحمدللہ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے یہاں سے ویزا مل چکا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج میرا سعودی عرب کا ویزا کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے پہلے میں بہت سے انسٹیٹیوٹ میں جاتا تھا، وہاں پہ لوگ فراڈ کر کے ہم سے پیسے لے کے بس 1-2 دن میں آپ کا ویزا ہو جائے گا کہہ کر ہمیں فراڈ پاکستان میں اس وقت فراڈ کی ایک انتہائی ایک لمٹ کراس ہو چکا ہے۔ میں اپنے آج میں الاروم جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کا میں شکر گزار ہوں۔ الاروم انٹرپرائزز اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں پہنچا ہوں، اور یہ وہ ادارہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ کو باقاعدہ طور پہ انفارمیشن دی جاتی ہے اور تمام طرح آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ کیا جاتا ہے، اور 1 ماہ کے اندر جو پروسیس ہے وہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ کو باقاعدہ ہر چیز کی انفارمیشن دی جاتی ہے۔ کوئی اسٹڈی ویزے پہ جانا چاہتا ہے، بزنس ویزے پہ جانا چاہتا ہے، تو ہر طرح کی یہاں پہ سہولت موجود ہے۔ یہاں پہ بہت ویل کوالیفائڈ سٹاف یہاں پہ موجود ہے جو کہ کلائنٹ کو یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم آپ کو ملواتے ہیں سردار زعیم سدوزئی سے، جو کہ اس وقت CEO ہیں الاروم انٹرپرائزز۔ ان سے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ کو سعودیہ جاننا ہے، بحرین جاننا ہے، دبئی جاننا ہے، شارجہ جاننا ہے، مسقط جاننا ہے، آسٹریلیا جاننا ہے، USA جاننا ہے، UK جاننا ہے، اسٹڈی ویزا چاہیے، جاب کا ویزا چاہیے، کیسے حاصل کر سکتے ہیں اور فراڈ کیا کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ، اکثر جو ہے جو ایجنٹ حضرات ہیں وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، کیسے آپ کو جو ہے اسٹڈی ویزا کے نام پہ آپ کو آپ کی لاکھوں روپے کی رقم ہڑپ کر جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے دفتر بند، چھٹیاں پنج، اس کے بعد وہ غائب 9-2-11 ہو جاتے ہیں۔ تو جو الاروم انٹرپرائزز ہے یہ بیسک ایک بہت عرصے سے پاکستان میں جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو، جاب کا ویزا ہو، بزنس ویزا ہو، ہر طرح کی جو ہے وہ ویزے اور ان کی انفارمیشن جو ہے بڑے عرصے سے پرووائڈ کر رہا ہے۔ الاروم انٹرپرائزز کے CEO ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار زعیم سدوزئی صاحب۔ زعیم سدوزئی صاحب، کیا کیا ویزے جاتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں۔ اب سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھائیں ہم کہ یہ جو فراڈ ہو رہا ہے ہماری کمیونٹی میں، فراڈ ہماری کمیونٹی میں نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہاں پہ کچھ جو ایجنٹ ہیں، سب ایجنٹ ہیں، وہ مختلف اداروں سے مل کر لوگوں کے ساتھ، یہ خاص کر کے جو ہمارا جو FIA کا محکمہ ہے، اگر یہ تقریباً درست ہو جائے تو میرے خیال میں پاکستان سے یہ جو ایجنٹ مافیا یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ کہ یہ مختلف اشتہار چلاتے ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور لوگ ہمارے کیسے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ فیس بک پہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویزا فری ہے، یہ ویزا فری ہے، اب آ جائیں۔ جب وہ جاتے ہیں وہاں ان کو میڈیکل کے نام پر پیسے لے لیتے ہیں، یا ان کو کہتے ہیں یہ آپ کا ویزا آ گیا ہے اور ہم آپ سے 60-70 ہزار روپیہ لیں گے، لوگ فوراً ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ آپ نے جب بھی ویزا حاصل کرنا ہے گلف ممالک کا، کسی بھی ملک کا، تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جو بندہ آپ کو سوشل میڈیا میں یا پرنٹ کدھر بھی اگر آپ کو اشتہار بھیجتا ہے یا فون کرتا ہے، اس سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ کی ایجنسی ہے، گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹرڈ ہے۔ اگر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے آپ وزٹنگ کارڈ مانگے، اس سے وزٹنگ کارڈ، یہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ وزٹنگ کارڈ ہے ہمارا، اس کے اوپر آپ کا لائسنس نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد پروموٹر کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ وزٹنگ کارڈ اس سے لے کے پھر اس کے دفتر میں آئیں، جس طرح آپ یہ دفتر میں آپ پہنچ چکے ہیں، آفس میں آئیں اور پریکٹیکل آفس میں آئیں، اور جب آفس میں آئیں گے تو سب سے پہلے اسے پوچھیں گے آپ کا لائسنس کدھر ہے۔ اچھا سردار صاحب، یہ جو مارکیٹ میں فراڈ کرتے ہیں وہ بنیادی طور پہ کیا کیا ٹیکنیکس استعمال کرتے ہیں کلائنٹ کے ساتھ؟ کیا کیا فراڈ میں چیزیں آتی ہیں، کیا کیا کیسے وہ شیشے میں اتارتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، وہی سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، میں نے آپ کو کہنا کہ سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا پہ اشتہار لگایا، بوسٹ اپ لگایا، یہ فری ویزا، یہ فلانی کمپنی میں اتنے 2300 بندہ چاہیے، فلانی کمپنی میں اتنے 1000 بندے، کھانا رہائش فری، یہ جو فراڈ ہوتا ہے اس میں لوگ اتر جاتے ہیں اور پیسے جمع کروانے کے بعد
9-2-11। अब उसमें आपको मैं बता रहा था कि ये विजिटिंग कार्ड आपके पास आ गया, उसके बाद दफ्तर में आए और आप उसके बाद ये कैमरामैन आपका अगर दिखा सकते हैं तो ये दिखाएं, उससे ये लाइसेंस चेक मैं करवाएं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये लाइसेंस है, ये उससे पूछेंगे ये लाइसेंस आपका है। ये देखें जी, लाइसेंस है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ब्यूरो इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। तो ये एक रजिस्ट्रेशन इदारा है जो कि बाकायदा गवर्नमेंट से है। इसके साथ साथ उनके साथ और क्या क्या सर्टिफिकेट होने चाहिए? मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, ये चैम्बर का, ये हमारे लगे हुए हैं प्यूपा का और चैम्बर का भी, और इसी तरीके से ये हमारे जो लाइसेंस एक्सपायर हो जाते हैं फिर हम दोबारा रिन्यूअल की सूरत में लेते हैं। ये हमने प्रोटेक्टर से लिया है, उनसे अवार्ड मिला हमें कि अच्छा वेलकम किया। अच्छा, ये चीज़ हो गई है। उसके बाद आप वहाँ से जब आप वहाँ कागजात जमा करवाते हैं तो उनसे रसीद हासिल करें लाजमी कि हमने पासपोर्ट जमा करवाया और यहाँ इतने पैसे जमा करवा रहे हैं वीज़े की माद में। जब आप ये काम करेंगे तो कभी भी आपसे फ़रार नहीं होगा। फिर दूसरी बात ये है कि आपको यानी कि दफ्तर में अगर आप नहीं आते हैं तो आप ये करेंगे, उनको पूछें कि आपकी परमिशन क्या है, यानी कि आपने अपना जो वीज़े आपने स्टील, शटरिंग, मैसन, लेबर या आपने जो ख़ास करके ये मक्के के हवाले से जो फ्रॉड हो रहा है, जो कि खादमा जाते हैं, खादम, इनके हवाले से बहुत बड़ा फ्रॉड होता है। उसके लिए आप पूछें, ये लगी हुई हमारी परमिशन जनाब प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन, ये प्रोटेक्टर से अटेस्ट है, ये उन्होंने टेस्ट करके हमें बाकायदा, ये वेल्डर के वीज़े थे और ये देखें प्रोटेक्टर की स्टैम्प लगी हुई है और ये चीज़ें। और जब आप उससे परमिशन और उसका PTM नंबर मांगे उससे, आप वो चेक करेंगे और आप जाएं किधर, गवर्नमेंट की वेबसाइट है www गवर्नमेंट PK जॉब, ब्यूरो PK जॉब, ये आप ब्यूरो की वेबसाइट पर जाएंगे, वहाँ पूरी डिटेल पड़ी होगी और वहाँ वीज़े सारी चीज़ होगी। अब उसके बाद आपसे इंशाल्लाह फ्रॉड नहीं होगा। एक और किसी भी पेटेंट प्रमोटर एजेंसी के पास जाएंगे, अगर आपको कोई सब एजेंट मिल जाता है। सरदार साहब, आपके पास कौन कौन से वीज़े आते हैं, किन किन वीज़ों पे काम कर रहे हैं, कौन कौन से कंट्री हैं? आप दूसरी में उसको एंड कर लो बात को, अगर आपको सब एजेंट को मिल जाता है नो प्रॉब्लम, सब एजेंट काम करते हैं एजेंसियों में, लेकिन उसको साथ लेके एजेंसी में लाजमी जाए, उससे परमिशन वगैरह हर चीज़ चेक करें। दूसरी बात, जो हम क्या काम करते हैं, हमारा काम अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कोरोना के दौरान कतर में तकरीबन 500 से ऊपर बंदा भेजा है। जब पूरी ऑल वर्ल्ड दुनिया बंद थी पाकिस्तान के लिए, उस वक्त भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क से 500 से ऊपर बंदा हमने कतर में भेजा है। उसके बाद हमने रेगुलर सऊदीया में लोग हम भेज रहे हैं, हम प्रोसेस का भी काम कर रहे हैं। वहाँ से जो लोग वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं वो अक्सरियत से हम वो काम करते हैं। दुबई का काम कर रहे हैं हम। उसके बाद हमने UK का काम किया, वर्क परमिट। अभी भी मेरा बेटा जो है UK में है, वहाँ से वो वर्क परमिट वगैरह का काम कर रहा है, स्टडी का काम कर रहा है। एनीवे किसी भी मुल्क की स्टडी, अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं UK का वीज़ा जो है वो स्टडी वीज़ा लेते हैं, तो वो मुख्तलिफ अकेडमियाँ ज्वाइन करते हैं और एक लंबा प्रोसीजर होता है। तो जो स्टूडेंट UK का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, स्टडी वीज़ा या जॉब का वीज़ा या बिजनेस वीज़ा, वो कैसे कर सकते हैं? देखें, जो बिज़नेस वीज़ा है ना, वो तो जो आम बंदा नहीं कर सकता जब तक वो बिजनेसमैन ना हो, जिसकी को यहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह कारोबार ना हो। दूसरा वर्क परमिट वाला आ गया। वर्क परमिट का जो वीज़ा है वो तकरीबन UK का बहुत कास्टली हो चुका है इस वक्त। तकरीबन ना करते भी पाकिस्तान का 1 करोड़ तक खर्चा हो जाता है, वे फैमिली सब कुछ। उसमें हासिल करने के लिए है कि आपको लीगल इस तरह के दफ्तर में जाना चाहिए, प्रॉपर बंदे से बैठ के बात करनी चाहिए और रिटर्न में बात करनी चाहिए कि हमारा कितना खर्चा आएगा, कितना क्या चीज़ होगी। उसके बाद उसे वर्क परमिट लें। जो स्टडी वीज़ा है वो आपको पता है कि वहाँ यूनिवर्सिटी फीसिस वगैरह लेती हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी का चेक करें, वहाँ किसी बंदे से मालूमात करके कि भाई वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वाकई लीगल है नहीं है क्या है, वहाँ फिर उसके बाद आप सोच समझ के फ़ीस जमा करवाएँ। और उसके बाद आप फ़ीस जमा करवा के आपको यहाँ स्टेटमेंट भी चाहिए होती है बैंक में, वो स्टेटमेंट रखेंगे और स्टेटमेंट के बाद फिर आपका जब वहाँ से लेटर आ जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। अच्छा, एक और सवाल है यहाँ पे, जो लोग स्टडी वीज़ा पे जाते हैं वो बैरून मुल्क में सिर्फ स्टडी कर सकते हैं, तो जॉब भी कर सकते हैं इसके साथ? देखिए, जॉब भी करते हैं वो लोग, थोड़ा टाइम मिलता है उनको, लेकिन आजकल UK ने बहुत सख्ती कर दी और UK में सर्वाइव करना स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। वो टैक्स, इसके लिए अब क्या आसान तरीका, जो स्टूडेंट हजरात हैं वो अगर जहाँ पे बाहर किसी यूनिवर्सिटी में जाना भी चाहते हैं और साथ स्टडी के साथ साथ जॉब भी करना चाहते हैं, तो कौन से कंट्री सूट करते हैं? देखें, अभी तो बेस्ट UK चल रहा था और UK में बहुत ज़्यादा लोग जा चुके हैं, लेकिन ये है कि बेस्ट ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद आपके पास कनाडा है, जापान है, आपके पास सबसे जो अच्छी इस वक्त जो है ना है वो जापान है, जर्मनी है। जापान का वीज़ा कितने का है? अब स्टडी वीज़ा, अब जो जापान का स्टडी वीज़े का वो भी एक प्रोसेस है सेम जिस तरह UK का है। आपको बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपके पास और उसके बाद तकरीबन ये कम UK से कम खर्चा आता है जापान का। अब दूसरी बात में मैं आ रहा हूँ, जो आपको मेरा जो मैसेज है यहाँ आपने जो नौजवानों के लिए,
नौजवानों के लिए ये मैसेज है, जिस तरह आपने एक नौजवान का यहाँ बयान भी रिकॉर्ड किया है, तो आज कल हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, आज कल नहीं बल्कि ये खान साहब के दौर में स्टार्ट हुआ था, जापान के साथ मायदा हो रहा था, और वो होते होते तकरीबन इस गवर्नमेंट में आके एंड पे वो कंप्लीट हो गया। 3 लाख बंदा यहाँ से जाएगा, लेबर जो कंस्ट्रक्शन के लिए जाएगा वहाँ पे। जापान पाकिस्तान गवर्नमेंट का मायदा हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह 131 एजेंसी से हमारी रजिस्टर हुई हैं, पूरे 5000 एजेंसी से हमारी। 5000 में से 31 एजेंसी में 131 में से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तकरीबन 47वां नंबर है, और मेरी एजेंसी भी रजिस्टर हो चुकी है जापान में मैन पावर सप्लाई करने के लिए। और जापान के लिए ये प्रोसीजर ये है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं नौजवानों को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। दुनिया का नंबर 1 मुल्क है कोल फेल हर लिहाज से। एक तो आपको आपका जो ज़िंदगी का जो आपका माइंड है वो भी वहाँ जाकर हासिल कर सकते हैं, एक आप वहाँ तरबियत हासिल कर सकते हैं कि किस तरीके से उस मुल्क में इंसाफ है। उसके लिए आप सबसे पहले मेरे ऑफिस में आएँ। हमारा जो दफ्तर है वो अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी मेरे 3727 मेरा लाइसेंस नंबर है, आला रूम एंटरप्राइज। और मैं अभी आपका फ़ोन नंबर ज़रा बता दें नाज़रीन को। कैसे आप आसान तरीन वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं, जॉब का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, स्टडी वीज़ा कैसे ले सकते हैं, अल अरूम का फ़ोन नंबर क्या है, ये ज़रा आप खुद ही बता दें क्या है। अच्छा, ये एक तो मैं आपको कार्ड भी दूंगा, वो भी आप अपना इसके में लगाएं। और दूसरा मेरा ये है PTCL जो नंबर है 051 है 49335548। उसके बाद मेरा नंबर ज़ाती जो है वो 031245 टाटरा 04 दफ़ा 0 और 5। इसके अलावा मेरा नंबर है 0। किस टाइम पे लोग आपको कॉल कर सकते हैं? लोग ये जो PTCL का नंबर दिया मैंने, ये सुबह आप 9 से शाम 6 तक कॉल कर सकते हैं। दूसरा जो मेरा नंबर है वो एनी टाइम आप यानी रात 9 बजे के बाद और सुबह 9 के बाद आप कॉल कर सकते हैं मुझे। जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर व्हाट्सएप मुझे मैसेज करें, मैं आपको जवाब दूंगा। लेकिन आप बजाय कॉल करने के आप मेरा दफ्तर का एड्रेस लें और सीधे ऑफिस में आए, और जो मालूमात आपको ऑफिस में होगी वो किधरे भी नहीं हो सकती। नौजवानों के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है, आज का जो नौजवान है 18 साल 19 साल 20 साल 21 साल, वैसे 18 से 39 साल जो है वो हम वर्कर भेज सकते हैं जापान के लिए। जापान का मेरा अदारा सदर में ऑलरेडी इसमें एक चीज़ और क्लियर कर दें, जो लोगों के पास बे-फार्म होता है, क्या वो बे-फार्म के बाहर जा सकते हैं जिनके पास ID कार्ड वगैरह नहीं होता? नहीं, बे-फार्म पे नहीं जा सकते। बे-फार्म पे नहीं जा सकते। जो बे-फार्म के नाम के ऊपर स्टडी वीज़ों के ऊपर फ्रॉड किया जाता है, ये सब फ्रॉड है? नहीं, स्टडी पे वो तो जा सकते हैं। वो अलग इशू है या ना स्टडी के हवाले से। लेकिन ये है कि जो वर्क परमिट है या लेबर का जो भी वीज़ा है, अपना एग्रीमेंट का वीज़ा है, वो आपको कभी भी कुछ मुल्क 18 साल के बाद ले लेते हैं, और सऊदी अरब जो है 21 साल के बाद लेता है। जापान ने भी 18 साल से स्टार्ट कर लिया है। और सबसे मैं दोबारा आपको जोर दे रहा हूँ, अभी जो मेरे पास काम है हज़ारों की तादाद नहीं, हम लाखों की तादाद में लोग भेज सकते हैं। अगर हमारे पास जितनी भी मैन पावर हो मैं भेज सकता हूँ हज़ारों की तादाद। जापान क्योंकि 3 लाख बंदा 131 एजेंसी ने भेजना, आप देख लें फिर। और वो जिस तादाद में मेरे पास लोग आएंगे, सदर में अदारा मेरा, कोटली आज़ाद कश्मीर में अदारा मेरा। जापान में रह के कितना कमाया जा सकता है? मैं अदारे आपको बता लेता हूँ पहले। कोटली में मेरा अदारा अभी जो मैं ओपन कर रहा हूँ तकरीबन वो एंड पे है, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ये चांदनी चौक में मैं अपना इदारा यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं। सदर में ऑलरेडी हमारा इंस्टीट्यूट चल रहा है। इसी तरीके हम कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पर, पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर खोलेंगे। और स्टूडेंट जो पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक FA BA ग्रेजुएशन, जो दिन को सिर्फ 3 घंटे से 4 घंटे टाइम निकाल लें और वो आगे लैंग्वेज सीखें। 3 महीने का कोर्स है इनिशियल, और उसके बाद ये है N5 3 जो स्टार्टिंग वाला है कंस्ट्रक्शन लेबर वर्कर। और जो है अगर ट्रेड में आप जाना चाहते हैं तो उसमें ये है कि वो 5 से 6 माह का कोर्स है, N4 है। लेबर में सर जापान में लोग जो कितना कमा सकता है आम नौजवान? अब इसमें यह है कि जब आप की लैंग्वेज सारा कुछ हो जाएगा, आप हर चीज़ कर लेंगे, हम आपको वीज़ा प्रोवाइड करेंगे, ये हमारी गारंटी हर तरह की। तो वहाँ जाके कमाने का ये है कि नॉर्मल भी वहाँ 2 लाख 2.5 लाख रुपया जो लेबर की सैलरी है, जो ओवर टाइम डाल के वहाँ पे कॉन्टैक्ट जब हम करेंगे उसके बाद ही हम उसको लीगलाइज करेंगे भाई कितनी सैलरी है। लेकिन नॉर्मल भी 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपया है। जो वर्कर है वो 4 से 5 लाख रुपया इंशाल्लाह इतना कमाएगा। और सबसे बेस्ट इस वक्त जो है वो जापान है। तमाम स्टूडेंट जो घर बैठे हुए हैं, जो पढ़ चुके हैं, जो इम्तहान दे चुके हैं, वो फौरी रब्ता करें हमारे साथ, और हम उनको लैंग्वेज सिखा कर जितना जल्दी होगा, हम उनका एक टेस्ट होता है N5 का और उसके बाद N4 का। N4 का वो जो लोग जाएंगे जो लीगल जो काम टेक्निकल में जाएंगे। जो आम वर्कर फैक्ट्री लेबर किसी में जाना चाहता है वो जाए N5 को, यानी 3 महीने के कोर्स में। तो उसको हम जितना जल्दी होगा इंशाल्लाह 5 से 6 माह के अंदर अंदर उसको जापान भेज देंगे। 3 महीने के कोर्स करेगा और 1 से 2 महीने हमें उसका चाहिए प्रोसेस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे सरदार
ज़ईम सदोज़ई साहब जो कि अल अरूम इंटरप्राइजेज़ के CEO हैं। नाज़रीन, इस वक्त फ्रॉड की दुनिया छाई हुई है, लोग लाखों रुपया लेके लुटे जा रहे हैं। कोई डंकी लगा के बाहर जाना चाहता है, कोई यूरोप जाना चाहता है, तो डंकी से नौजवान जो है वो रस्तों में ही दम तोड़ जाते हैं और अपने वालिदैन को पूरी ज़िंदगी का रोग लगता है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि अगर आप लीगल तरीके से आते हैं, प्रॉपर वे अडॉप्ट करते हैं, वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट वीज़ा ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि जापान में इस वक्त लाखों जो है वो वैकेंसीज, अल अरूम इस हवाले से अपनी मिसाल खुद रखता है, जिसका पिछले कई अरसे से पाकिस्तान में मौजूद है। हर तरह की मालूमात आप ले सकते हैं। नंबर आपके इस वक्त स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो जो फ्रॉड की दुनिया है वो हमेशा के लिए बाय बाय बाय।